students. Today we will continue our chapter motion and time. That is our chapter 13, which we are already doing. In this module we will learn about measurement of time, how time can be calculated, or our ancestors how they identify the time. They already realize that time is crucial, important for them, so they start measuring time. How they measure the time? They measure day by sunrise. जब सूरज सुबह आता था तो वो उससे कहते थे कि नया दिन है, और सनसेट पे फिनिश हो जाता था उनका डे. तो दे रियलाइज इट और दे टेकन इट एज अ वन डे. देन if we talk about month, what will they do? From new moon to new moon, one new moon to another new moon. अब क्या होता है न्यू मून? न्यू मून इज व्हाट? बेसिकली न्यू मून इज एन, क्या होता है न्यू मून? अमावस्या. ठीक है ना. तो एक अमावस्या से दूसरे अमावस्या. अब इन दोनों में कितने डेज का गैप होता है? फ्रॉम वन न्यू मून टू सेकेंड न्यू मून, द डेज number of days is 29.5. that means 29.5 is approximately 30 days, which cause the one which means 1 month. ठीक है. now year, if we talk about year, तो they calculate the time or measure the time in year by revolution of earth around the sun. उन्होंने अर्थ की रेवोल्यूशन, जो अर्थ की रेवोल्यूशन सन के अराउंड होती है, दे कैलकुलेटेड इट एज अ 1 ईयर. दे कैलकुलेटेड इट एज अ 1 ईयर. यू नो दैट इट टेक्स, अर्थ टेक्स एटलीस्ट 365 1/4 days to calculate it, to revolve around the sun. This you know that. That means they calculate it as a 1 year. Clear? Now devices used to measure time. कैसे डिवाइसेस बने? उस टाइम को मेजर करने के लिए डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिवाइसेस बने. नाउ फर्स्ट डिवाइस दैट इज सन डायल. इन दिस दे यूज सन को यूज करके उन्होंने ये डायल बनाए थे. सन डायल मीन्स अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ सन, और यू कैन से शेडो, दैट विल टेल द टाइम. Our shadow, if it is small or big, that will tell the time. That means according to the position of sun, that will tell us the time. That is sundial. One of the sundial you have seen at Jantar Mantar in Delhi also. पता है ना आपको, वहाँ पे बना हुआ है जंतर मंतर. Then we have a second clock is sand clock. Sand clock is basically like this. It is like a 2 cups. In this way, 2 cups. ठीक है. They are joined together in this way. Here in upper cup there is a sand which will go down slowly and slowly in the lower cup. Then we will reverse it. It is also called as hourglass. What does this mean? Hourglass. This hourglass, that means this sand clock, it will take 1 hour to take 1 hour from one cup to another. यानी सैंड को पास ऑन होने के लिए एटलीस्ट 1 hour लगता है एक कप से दूसरे कप पे जाने के लिए. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज hourglass, एंड इट इज ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट. हमें मार्केट में भी मिल सकती है इफ वी ट्राई. इज इट ओके? देन वी हैव वाटर क्लॉक. फिर वाटर क्लॉक्स भी बनी. वाटर क्लॉक जो थी वो ज़्यादा टाइम नहीं चली, बिकॉज दीज आर नॉट सक्सेसफुल. हेयर वाटर इज ऑल्सो यूज, बट द टाइम इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ देयर फ्लो. उनके फ्लो से हम उसको मेजर करते थे. नाउ इज योर क्वार्ट्ज क्लॉक. क्वार्ट्ज क्लॉक जो आजकल चल रही है हमारी, दैट इज वॉल क्लॉक्स, डिजिटल क्लॉक्स, पेंडुलम क्लॉक्स. दीज क्लॉक्स आर बेसिकली व्हाट? इनके बीच में एक सर्किट टाइप फिट होता है, इन विच आर इन सेल विच आर measured with the help of, or you can say cell is fitted in them. एक सर्किट के अंदर सेल फिट होता है which will run these clocks. If we talk about wall clock or wrist clock, like this is a wrist clock. ठीक है. wrist watch. अब मैं इस wrist watch को अगर ऐसे चेंज कर दूँ तो it will change into a wall clock. You can say कि हम इसको वॉल पे लगा सकते हैं. it becomes a wall clock. Now what are digital clocks? आपकी
the clocks which show digits, that is called as digital clocks. Is it okay? That is called as your digital clock. Now simple pendulum. pendulum clocks are what? आपके पास घर में क्लॉक्स है कि नहीं है? वो क्लॉक्स आपके किसका काम करती हैं? उनके नीचे एक पेंडुलम सा बना होता है. बहुत अच्छी ब्यूटीफुल क्लॉक्स आ रही हैं आजकल जिनके नीचे पेंडुलम होता है, विच मूव्स लाइक दिस, ऐसे ऐसे मूव करता रहता है. तो दैट इज द पेंडुलम. वी विल टॉक अबाउट पेंडुलम इन द नेक्स्ट टॉपिक. क्लियर? नाउ स्टॉप वॉच. व्हाट इज स्टॉप वॉच? स्टॉप वॉच इज यूज टू मेयर द स्मॉलर टाइम. जितना छोटे से छोटा और थोड़े से थोड़ा टाइम हम मेजर कर सकते हैं, उसको हम उसमें हम किसको यूज़ करते हैं? स्टॉप वॉच को. लाइक इफ़ वी हैव अ स्टॉप वॉच यू हैव सीन इन योर मोबाइल्स लाइक दिस. आपने अपने मोबाइल्स में देखा होगा स्टॉप वॉच को. इफ़ आई स्टार्ट इट यू विल सी, यू विल कैलकुलेट द स्मॉलर टाइम. छोटे से छोटा टाइम भी आप कैलकुलेट कर सकते हो. लाइक आपकी रेसेस होती हैं जैसे, या हम क्विज़ेज़ होती हैं, कोई भी ऐसा आपका कुछ होता है, फंक्शन होता है, उसमें अगर हमें कोई कंपटीशन हमें अटेंड करना है और वहाँ टाइम की ज़रूरत है, देन वी विल यूज़ these stop clocks and it can calculate up to 1/100. that is called as 100th. 100th जो कैलकुलेट होता है that is called as stopwatch. ठीक है? that is calculated by stopwatch. now our next is last is atomic clock. atomic clock is used by scientists in the laboratory and that atomic clock calculates up to 1 millionth. what is 1 millionth? दिस इज 1 millionth. इतना टाइम 1 millionth यानी और भी उससे छोटा यानी एटॉमिक्स अगर हमें मेजर करने हैं, एटम्स के बारे में मेजर करना है, उनकी स्पीड या उनका कुछ टाइम उनका लेना है, तो वी विल मेजर बाय दिस एटॉमिक क्लॉक. क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट द डिवाइसेस. नाउ वी विल टॉक अबाउट पेंडुलम. सिंपल पेंडुलम. सिंपल पेंडुलम basically works on the principle of periodic motion. You have already studied about periodic motion. Periodic motion is what? Basically periodic motion is the motion which repeats after equal intervals of time. बार बार रिपीट होती है वो मोशन जो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम पे रिपीट होती रहती है. लाइक अगर हम बात करें पीरियोडिक मोशन में, यू हैव सीन स्विंग्स. स्विंग्स आपने देखे होंगे. तो स्विंग्स क्या है? बेसिकली दे मूव लाइक दिस. झूलों पे बैठते हो आप, ऐसे ऐसे झूलते हो, तो दैट इज व्हाट? अ पीरियोडिक मोशन दैट रिपीट्स आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. जितना जहाँ जाता है उतना ही वापस जाता है. नाउ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस इज सिंपल पेंडुलम. अगर हम पीरियोडिक मोशन के एग्जाम्पल की एक बात करें तो दैट इज सिंपल पेंडुलम विच यू हैव seen in at your homes. Now what is simple pendulum? Simple pendulum, this is the basically string or you can say unstretched string. Basically unstretched string or you can say it as a thread. आप घर में पेंडुलम बना सकते हो. यू कैन टेक अ स्टोन. ठीक है? बेसिकली वैसे हम पेंडुलम की बात करें तो इट इज़ मेड अप ऑफ मेटल. इट इज़ अ मेटेलिक बॉल. मेटेलिक बॉल होती है दैट इज बेसिकली एंड इट इज मेड अप ऑफ मेटल. बट हम घर में अगर बनाना चाहें तो वी कैन यूज स्टोन एंड दिस इज कॉल्ड एज, दिस मेटेलिक बॉल इज कॉल्ड एज बॉब. इट इज बेसिकली कॉल्ड एज बॉब. आई हैव मेड pendulum at home. This is my pendulum. Okay, but I haven't used stone here. Clear? आप use stone कर सकते हो. And this is the thread. This one is my bob. Clear? And it will move like this. If I move it, it will move like this. समझ पाया? Now this is the stop position. अगर आप देखो तो it is at rest position now. बिल्कुल नहीं move कर रहा. This is at rest position. This rest position is called as mean position of the bob. ठीक है? Now I'll start moving. अब मैंने इसको यहाँ से लिया और मैंने यहाँ लेकर आई. ठीक है? For first point is here, then it comes back here, then it goes here, then again it comes back here, then this is ऐसे ही रिवोट करेगा ना. वो एकदम ऐसा नहीं होगा कि आपका पेंडुलम सेंटर को छोड़कर कहीं भी आ जा सके. सेंटर को तो वो क्रॉस करेगा ही करेगा. इक्वल डिस्टेंसेस पे वो जाएगा like this. It covers equal distances on both the sides. Clear? So that is the motion of, or you can say of periodic
of pendulum. Now here we will discuss in detail. Like this is your pendulum. This is your pendulum which is attached to a string stand. Clear? This is your string and this is your bob. Now how it moves? First it comes to this position. Let it be a position, and this will be your B position. It comes to B position and then goes back to A. Now again it goes to C position and it goes to C position. From C it again comes back to A. First of all it is at this position. This is called as mean position. हम इसको कौन सा नाम देंगे? It is at, when it is at bob is at rest position, then it is called as mean position. Now it moves from A to B. This position is called as extreme position. When from B to A it gets, ठीक है, it will not stop here. It will move. Then it goes to A to C. That is again it is extreme position. Clear? Now from A to B, come back to A to C, come back to A. वापिस आया ना, वापिस वहीं पे. That portion is called as one oscillation. That is called as one oscillation. Clear? And this motion is called as oscillatory motion. Oscillatory motion. Now what is oscillatory motion? The to and fro motion. To and fro means this motion. Like this. This type of motion is called as to and fro motion. Clear? The to and fro motion of the bob about its mean position. The to and fro motion of the bob about its mean position is called as oscillatory motion. Clear? Now is your time period. Time period is what? Time taken to complete one oscillation. एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है, यानी A to B, B to A, A to C, C to A, इसको जो टाइम लगा, that is called as time period. Clear? समझ में आया? That means the A to B, B to A, then again A to C and C to A. That is called as time period. That means the time taken to complete one oscillation is called as time period. Clear? Now our next topic is distance time graph. Distance time graph basically depends upon, first of all, uniform and non-uniform motion. First of all, tell me, to start with distance time graph, we have already discussed uniform motion. What is uniform motion and non-uniform motion? What is non-uniform motion? Uniform motion means an object covers equal distances in equal intervals of time. Equal intervals of time में जो एक ऑब्जेक्ट अगर यहाँ से चलना शुरू हुआ है, it covers 2 kilometers in 4 minutes. Then it covers 2 kilometers in again 4 minutes. So it means 4 plus 4, 8 kilometers. Again it covers 6 kilometers. Again in 4 minutes. So that means it covers equal distances in equal intervals of time. Now if we talk about non-uniform motion. Non-uniform motion, again unequal distances. Any object that covers unequal distances in equal intervals of time, or you can say that equal distances, हम ये भी कह सकते हैं, और equal distances in unequal intervals of time. How can you say that कि unequal distances, intervals of equal distances in unequal intervals of time. Like अब मैंने कार चलाई, ठीक है, I'll started the car, the road is clear, I'll at 80 degree,
80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं जा रही हूँ, ओके। बट आफ्टर सम टाइम देयर इज अ क्राउड, बहुत सारा क्राउड था, तो अब मेरी स्पीड क्या हो गई, 60 किलोमीटर पर आवर हो गई। और यू कैन से, अभी तो मैं डिस्टेंस स्पीड के अकॉर्डिंग बात कर रही हूँ, अगर मैं डिस्टेंस के अकॉर्डिंग और टाइम के अकॉर्डिंग बात करूँ तो मैंने सबसे पहले अपना, जब हम व्हेन वी स्टार्ट द कार, तो वो उसने आपके 2 किलोमीटर्स और यू कैन से 20 किलोमीटर्स उसने 4 आवर्स में कवर किए, ठीक है। नाउ इट स्टार्टेड, जब वो 4 आवर्स में कवर किए, अगेन 20 किलोमीटर्स तो गई वो, लेकिन 4 आवर की जगह उसने अब 5 आवर्स में कवर किए, तो दैट मीन्स टाइम चेंजेस। और अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो अगर मान लीजिए 20 किलोमीटर्स गई वो 4 आवर्स में और 30 किलोमीटर्स भी उसने 4 आवर्स में कवर किए, अगेन इट इज नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर? इन बोथ द केसेस इट इज नॉन यूनिफॉर्म, इन यूनिफॉर्म दैट इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। नाउ डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करें तो ग्राफ आपने पढ़ा हुआ है, वी हैव अ ग्राफ स्टडीड इन 7th क्लास इन मैथ्स ऑल्सो, ठीक है। आपको ग्राफ पता है, आपने बार ग्राफ्स ड्रॉ किए हुए हैं, आपने पिक्टोरियल ग्राफ्स ड्रॉ किए हुए हैं। अब हम करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए ग्राफ ड्रॉ। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, एक्स एक्सिस विल बी देयर एंड वाई एक्सिस विल बी देयर इन द ग्राफ, ठीक है। ग्राफ का पता होना चाहिए, आपको मालूम है ग्राफ पेपर आता है, देयर आर बॉक्सेस, डार्क कलर के बॉक्सेस होते हैं, इस टाइप में होते हैं स्क्वायर शेप में, उनके अंदर भी 10 बॉक्सेस बने होते हैं, देखा है ना ग्राफ पेपर आपने। तो वी विल कंसीडर दिस एज अ स्केल, वन बॉक्स को हम एक स्केल में ले सकते हैं, 1 यूनिट को, क्लियर। एंड दिस इज द ओरिजिन, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एज एक्स एक्सिस and this vertical line is called as y axis. Always we take it as a y axis, always we take it as a x axis. Now let's start the graph. We first draw, we will not need all the 4 lines, we need only 2 lines with origin to draw our distance time graph, basically a graphical representation of speed. Is it okay? Here I am taking the line, clear. These are the 2 lines, this is the origin, this one is your x axis, this one is your y axis, because both the values are positive, that is why we will take only positive column. on जैसे आपको नंबर लाइन बताई गई थी तो उसमें आपने इंटीजर्स ड्रॉ किए थे ऐसे, यू हैव ड्रॉन लाइक दिस इक्वल डिस्टेंसेस पे। अब ग्राफ में ऑलरेडी आपको पता है कि उसमें इंटीजर्स जो है वो इक्वल डिस्टेंसेस पे हम ड्रॉ कर सकते हैं, बट बिफोर दैट I'll tell you that time that is written on, always written on towards the x axis, हमेशा हम टाइम जो है वो x axis में लेते हैं, whether it is in hours, minutes, किलोमीटर, सेकेंड्स, किसी भी में हो आप टाइम यही लेंगे। Now towards y axis we will write distance, either it is in kilometers, meters or centimeters, clear. We will write like this. Now here we will, what we have to do, we have to mark the points. अब points कैसे मिलेंगे आपको, वो the tabular data, आपके पास एक डाटा आप कलेक्ट कर रहे होंगे या आपको मिलेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, आप उसको देखोगे और उनको मार्क करोगे। here we have that is distance and here we have time, clear. Distance in kilometer, time in hours. If I have to mark it here, let's start 0 and 0, clear. Next we will take like 2 4, then is again 4 8, then we will take 6 12 and we have 8 and 16। अब ध्यान से देखिए मैंने क्या टाइम लिया, अगर 2 किलोमीटर्स लिए तो 4 आवर्स ले लिए, या 4 मिनट्स कर लीजिए इसको, 4 मिनट्स, आई विल टेक 4 मिनट्स हेयर। 2 किलोमीटर्स को कवर करने में 4 मिनट्स लगे, 4 किलोमीटर्स कवर करने में 8 मिनट्स, देन 6 किलोमीटर्स कवर करने में 12 मिनट्स। तो अगर आप ध्यान से देखो इसकी स्पीड अगर हम निकालें यहीं ओरली, इन द माइंड इफ विल सी दैट इज इट इज़ 1/2, अगेन इट इज़ 1/2, अगेन इट इज़ 1/2, अगेन इट इज़ 1/2, सभी केसेस में सेम आ रहा है आंसर सेम। दैट मीन्स अब इसको आगे देखते हैं क्या करेंगे हम। लेट्स स्टार्ट विद दिस। हेयर वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल मार्क द रीडिंग्स, 2 4 6 8,
डिस्टेंस में 2 4 6 8 10 वी नीड अप टू 16 दैट इज 12. आपके ये इक्वल होने चाहिए ऑन द बोर्ड. दीज आर नॉट इक्वल बट योर स्केल शुड बी इक्वल. हेयर अगेन आई एम राइटिंग 2 4. डिस्टेंस में तो 8 तक हो जाता काम. चलो up to 10 we will mark it. There is no need to mark up to 16. Here we need 16. So हम थोड़ा सा इसको note down कर लेते हैं. That is 6 8 10 12 14 and this one is 16. Clear? ठीक है. अब इनको लेके चलो. क्या कहते हैं 2. नाउ व्हाट्स योर फर्स्ट रीडिंग इज 0 0. वी विल स्टार्ट विथ हेयर. नाउ डिस्टेंस इज 2 एंड हेयर इट इज 4. दिस इज 2 एंड दिस इज 4. तो आई विल मार्क विथ डॉटेड लाइन. दिस इज योर डिस्टेंस, सॉरी स्पीड. 4 and 8. This is 4 and here I have 8. Clear? Then we have 6. This is the 12. Then we have 8. This is your 16. Clear? Now we have to join these. Let it be joined. मोस्ट प्रॉब्ली ये स्ट्रेट लाइन ही आनी चाहिए क्योंकि मेरे पॉइंट्स थोड़े से इधर उधर होंगे तो शायद ना आ पाए. आई हैव टोल्ड यू दैट ऑल द वैल्यूज आर इक्वल, ऑल रेशियोज आर इक्वल. इक्वल है कि नहीं है? तो दैट मीन्स द लाइन शुड बी स्ट्रेट. और अगर ये लाइन स्ट्रेट आ रही है इट मीन्स योर ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन. यानी वो किस में है आपका ऑब्जेक्ट? इट मूव्स यूनिफॉर्मली. आपकी जो स्पीड जा रही है वो सेम है. तो अगर वो इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम दैट मीन्स इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन. टू ड्रॉ दिस ग्राफ यू हैव टू ऑल्सो राइट इट हियर स्केल. व्हाट इज स्केल? स्केल मीन्स जो आपने यहाँ पे यूनिट लिया, लाइक आपने 1 बॉक्स जो लिया है दैट वी विल कंसिडर इट एज अ 1 यूनिट. अब उस 1 यूनिट को यू कैन राइट इट एज 1 किलोमीटर or you can, sorry, 2 kilometers you have taken. 0 to 2 you will write it as 2 kilometers. Then you will write 2 minutes. 2 minutes is equal to again 1 unit. Clear? जितना आप लोगे, जितने अगर 2 boxes को लेते हो तो you will write it here 2 units. अगर आप यहाँ पे 2 kilometers की जगह 25 kilometers का भी distance ले रहे हो तो you will write it here 25 kilometers. अगर आप hours ले रहे हो तो आप hours ही लिखेंगे. According to that you will draw the graph. Clear? Now if the car is moving constantly, अगर आपकी कार जो है वो constantly ही move कर रही है, एक ही speed है, एक ही तरह से move कर रही है, then the graph is drawn like this. That means the constant time graph is like this. That is the parallel line to the time. ठीक है? और horizontal line है आपका किसके according? टाइम के अकॉर्डिंग. एनी प्रॉब्लम? दिस इज द कांस्टेंट स्पीड ग्राफ. कांस्टेंट स्पीड ग्राफ. बट अगर आपका ग्राफ, अगर आपकी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, अगर आपका ऑब्जेक्ट यहीं पे वैल्यू में चेंज हो जाता है, मान लीजिए, ठीक है, लेट इट बी 9, तो ये ऑटोमेटिकली नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा सारा ग्राफ. आपकी वैल्यू जो है वो कुछ इस तरह से यहाँ से स्टार्ट होगी, 4 पर आकर ये कुछ इस तरह से होकर फिर ऐसे हो जाएगी. तो दैट इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, दैट इज़ अ कर्व इन इट. कोई ना कोई कर्व आ रहा है उसमें. तो दैट इज़ बेसिकली अ नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ. वी कैन कॉल इट एज अ नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ. क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर. नाउ योर चैप्टर इज completed. Thank you students.